स्टूडेंट्स, प्रीवियस टर्न पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे मॉड्यूल नंबर 1. दिस इज गिवन बाय, इफ यू सी योर सिलेबस, दिस इज मॉड्यूल 1, origin of partial differential equation, linear and non-linear partial differential equation of first order, Lagrange's method, equations, Charpit method, Cauchy method of characteristics, solution of linear partial differential equation of higher order with constant coefficients, equation reducible to partial differential equation with constant coefficients. तो प्रीवियस लेक्चर्स में जो भी हमारी एक सीरीज हुई है उसमें हमने ये पूरा मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकंड मॉड्यूल. सेकंड मॉड्यूल के अंदर पहला टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर. ओके, सो लेट अस सी व्हाट दिस प्रॉब्लम इज. यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारी सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ली है, और इसके अंदर भी हमने यहाँ पर लिखा है विथ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं. तो यहाँ पे हम पहले डिस्कस कर रहे हैं टू वेरिएबल के केस में, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के केस में. लेटर वी विल डिस्कस जनरल केस जहां पे हमारे पास n वेरिएबल्स हो सकते हैं. तो क्लासिफिकेशन इज व्हाट. सबसे पहले जनरल फॉर्म देखते हैं इसकी. तो जनरल फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर PDE with two independent variable is given by, हम यहां पे टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान रहे हैं हमारे x और y, और डिपेंडेंट वेरिएबल है बेसिकली z. तो इक्वेशन हमारी है जनरल फॉर्म, that is a del 2z upon del x square plus b del 2z upon del x del y plus c del 2z upon del y square plus कुछ लीनियर ऑर्डर के टर्म होंगे, कुछ हमारे सिंपल टर्म होंगे. लीनियर डिफरेंस का मतलब यहाँ पर कुछ इस तरह के टर्म्स आपको मिल सकते हैं. लेट अस सपोज मैं इसको नाम दे रहा हूँ b1 del z upon del x plus b2 del z upon del y plus some z is equal to 0. Let us suppose this is equation number 1. हम इन सारे टर्म्स को इन जनरलाइजेशन में भी लिख देते हैं. हम इसको लिख देते हैं f of this is some p comma q comma z, यानी कि ये टर्म प्लस सम टर्म f p q and z is equal to 0. बहुत सारी बुक्स में यू विल गेट दिस टाइप ऑफ टर्म. नाउ व्हाट इज द क्लासिफिकेशन. ए बी सी क्या है. ए कॉमा बी कॉमा सी कैन बी कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, नॉट जेड, क्योंकि हम यहां बात कर रहे हैं लीनियर पीडीज के बारे में. अगर ए बी सी की वैल्यू जेड हो गई तो इक्वेशन नॉन लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी. तो ए बी सी आइदर दीज आर कांस्टेंट्स और दीज कैन बी अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. So what are the classifications? So again I am reminding you your geometry. In your 11th or 12th you have discussed the conic section. In conic section you have studied when a conic section is parabolic, when it is a circle, when it is elliptic, when it is hyperbolic. Similarly here we will classify this equation of the form if b square minus 4ac is equal to 0, then what would be the nature of equation. Second is b square minus 4ac is less than 0, then what kind of equation will be there. And b square minus 4ac is greater than 0, then what kind of equation will be there. So this is straightforward, like geometry we have studied. This is parabolic. Parabolic equation. Then in this case equation number 1 will be parabolic. If b square minus 4ac is less than 0, elliptic equation.
if b square minus 4ac is greater than 0, this is hyperbolic equation. Hyperbolic equation. So whenever we are given an equation, second order linear partial differential equation, we compare that equation with this equation that is standard form and get the value of ABC, and then we check whether b square minus 4ac is greater than 0, less than 0 or equal to 0, and according to this we will classify our equation into the parabolic, elliptic and hyperbolic equation. Okay, important thing is that if a, b and c, if these are constants, so that is remember, if a comma b comma c are constants, then PD is same throughout the region. Same का मतलब है, if it is elliptic, it is elliptic. If it is parabolic, it is parabolic. If it is hyperbolic, it is hyperbolic. So throughout the region. But if it is functions of x and y, if a comma b comma c are functions of x comma y, then nature of PD changes. Nature of PDE changes according to the region. We will see an example. That means अलग अलग रीजन में अलग अलग बिहेव करेंगी इक्वेशन. अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चले गई तो हो सकता है इसका नेचर कुछ और हो, नेगेटिव एक्स में हो सकता है दूसरी तरह की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हो. कब? जबकि हमारे x यानी ए बी सी जो है वो फंक्शन ऑफ x एंड y है. लेट अस टेक एन एग्जांपल. Can I classify the equation? Your equation is basically d2u upon dx square plus d2u upon dx dt plus d2u upon dt square is equal to 0. Okay, classify it. This is classify it. So how to classify this? Solution. Compare. Let us suppose this is question number 1. Compare 1 with standard form. What is standard form? A del 2u upon del x square plus b del 2u upon del x del t plus c del 2u upon del t square plus some function of this is p, q and u is equal to 0. So you will say in place of y I am taking t, since in this our equation it is t is given, so rather than y we are taking t. Okay, and this no linear functions are involving in this equation, so basically f, x, y and u will be 0. So comparing equation number 1 with the standard form, this is given by this, we get a is equal to 1, b is equal to 1 and c is equal to 1. Now b square minus 4ac is equal to 1 minus 4 into 1 into 1, it is minus 3, which is less than 0. So equation number 1 is elliptic equation. This is the solution. This equation is elliptic equation. Okay? Okay, now example, another example. Equation is del 2u upon del x square plus y
del 2 u upon del x del y plus x del 2 u upon del y square, इसको यहाँ पे this is x basically and this is y, plus 2 times del u over del x plus del u over del y plus 6u is equal to 0. Solution. Compare equation with standard form we get. अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है a b c, क्या होगा यहाँ पे, तो दैट इज a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू x एंड c इज इक्वल टू y. और ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये सारे के सारे हमारे f x y और u के अंदर चले जाएंगे. सम फंक्शन ऑफ p एंड q भी हो सकता है. दिस इज कमा p कमा q, सो दिस इज सम p एंड q इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हम b स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट करते हैं. नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4a एंड c 4y, x स्क्वायर माइनस 4y. अब यहाँ पर कंडीशन मैंने अभी कहा था कि अगर हमारे कांस्टेंट यानी जो हमारे कोफिशिएंट ए बी सी हैं वो वेरिएबल्स आ जाए तो हमारी इक्वेशन का जो नेचर है वो अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह से डिफाइन होता है. जैसे इस केस में अगर हम बात करें b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई x स्क्वायर माइनस 4y, तो इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, व्हेन x स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन इज पैराबोलिक. पैराबोलिक. x square minus 4y is less than 0, equation is elliptic. And x square minus 4y is greater than 0, then equation is hyperbolic. So what is the nature of this equation? This depends upon the region. If we choose a region in which x square is equal to 4y, the nature of equation will be parabolic. If x square minus 4y is less than 0, equation will behave like a elliptic equation, and x square minus 4y is greater than 0, equation will behave like a hyperbolic equation. एक क्वेश्चन ये आता है कि हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और एलिप्टिक का मतलब क्या है. तो इसको समझने के लिए जो भी पीछे की कैलकुलेशंस है, जो भी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है, इट इज बियॉन्ड अवर सिलेबस, सो आई एम नॉट गोइंग इनसाइड डीप. व्हाई इट इज कॉल्ड पैराबोलिक एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैराबोलिक इक्वेशन, व्हाई इट इज कॉल्ड एलिप्टिक इक्वेशन, व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपरबोलिक इक्वेशन, एंड व्हाई वी आर choosing this b square minus 4ac is equal to 0 or greater than less than 1. So region is somewhere near to the our calculus, that is conic section. So we reduce our equation and we can find this, but it is beyond our syllabus. I am not going inside that. So you must remember only v square minus 4ac. If it is 0, then our equation is parabolic, less than 0 elliptic, greater than 0 hyperbolic equation. Okay. So this is up to here. We discuss the equation classification of second order linear equation with two independent variable. If more than two independent variable, then what would be the equation? So what would be the classification basically? So first of all we will say what would be the general form of PD of second order. So second order PDE with more than 2, yeah, I am taking here 3 basically. So second order PDE with 3 independent variables. So what is general form of this? So
इट्स जनरल फॉर्म, डू रिमेंबर, याद रखने के लिए, x, y and z. This is the sequence. I am considering x, y, z. This is independent, and u as dependent variable. Okay, so sequence x, y and z. तो हमें इसकी जनरल फॉर्म लिखने में आसानी होगी. सो दिस जनरल फॉर्म विल बी a11 del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस a12. अब देखिए x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, del 2u अपॉन del x del y प्लस a13 del 2u अपॉन इस x और इस z का डेरिवेटिव, दैट इज del x अपॉन del z प्लस a21 में इस y का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव इसके साथ आएगा, सो दैट इज del 2u अपॉन del x del y प्लस a22 del 2u, अब y का अपने साथ, del y स्क्वायर प्लस अब y का z के साथ, दैट इज a13 del 2u अपॉन del y into del z. This is del y del z plus a31 del 2u upon x और z, del x upon del z, a32 del 2u upon del y del z and a33 del 2u अपॉन del z स्क्वायर. ये सारे के सारे सेकेंड ऑर्डर के टर्म हो गए. अब फर्स्ट ऑर्डर के टर्म आएंगे, लाइक b1 del u ओवर del x प्लस b2 del u ओवर del y प्लस b3 del u ओवर del z प्लस सम cu is equal to 0. This is the general form of second order PDE with 3 independent variable. Here ai's, मैं इसको लिख सकता हूँ, this is ai comma j's can be constants or functions of x comma y comma z. Again this can be function of x y z, not function of u, otherwise non-linear equation बन जाएगी. तो इसको हम जनरलाइज कैसे करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं. कैसे सिंप्लीफाई में लिखते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो राइट डाउन 1 कैन बी रिटन एज, यहां एक बार समझने वाली चीज है, समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to 3 into summation j varies from 1 to 3 a I j del 2 u upon del xi del x j plus summation I is equal to इसको हम फिर I is equal to 1 to 3 bi del u upon del xi plus cu is equal to 0. This is compact form, समेशन फॉर्म में. इसको हम जब एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने के बाद हमें यही फॉर्म मिलेगी. पर ध्यान रखने वाली बात यह है, यहां पर डेल ओवर डेल x1 इज बेसिकली डेल ओवर डेल x, डेल ओवर डेल x2 इज डेल ओवर डेल y एंड सो ऑन. सो यू हैव टू, यानी कि 1 x1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, x2 रिप्रेजेंट कर रहा है y को, x3 रिप्रेजेंट करेगा यहां पर हमारा z को. सो दिस इज द जनरल फॉर्म. We can write this equation in this form. तो ये हो गई हमारी 3 वेरिएबल की इक्वेशन. तो हाउ टू क्लासिफाई दिस इक्वेशन, तो इसको हम पहले और जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं. मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूं, वेयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर x1 comma x2 comma x3.
in case of an independent variable, variables x1, x2, x3 dot 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 xn, general form of PD of सेकेंड ऑर्डर क्या हो जाएगा? यहां पर जो 3 लिखा हुआ है ये 3 रिप्लेस हो जाएगा n से. सो दैट वुड बी बेसिकली गिवन बाय जनरल फॉर्म summation I is equal to 1 to n summation j is equal to 1 to n aij del 2u upon del x I del j plus summation I is equal to 1 to n bi del u over del xi plus cu is equal to 0. In case of 3 variables, this is the equation. In case of n variables, this is the general form of second order PDEs where aij can be constant or some function of x by z. यानी यहाँ इस केस में x1, x2, x3, xn किसी के भी फंक्शन हो सकते हैं. तो हाउ टू क्लासीफाई दिस? तो उससे पहले हम एक चीज और यहाँ पे लिख लेते हैं, वो भी याद रखने की चीज है. लेट अज्यूम लेट दिस डेल आई, इसको हमने मान लिया दिस इज डेल ओवर डेल एक्स आई. बार बार डेल ओवर डेल एक्स आई लिखना पड़ेगा. इसका मतलब ही यही हो गया यहाँ पर कि हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हुआ है. और अगर इस तरह से लिखा हुआ है डेल एक्स आई जे, इसका मतलब है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स आई डेल जे, बल्कि u लिखने की भी जरूरत नहीं है, जो भी वेरिएबल हो. तो जहां जहां भी डेल लिखा होगा हम उसको रिप्लेस कर देंगे. तो आप समझ में आना चाहिए व्हाट यू मीन बाय दिस नंबर. ठीक है, एक्स आई जे का मतलब क्या है? यानी कि डेल टू सेकेंड ऑर्डर का टर्म है, डेल टू अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स जे, और सिंपल लिखा हुआ है तो ये हो गया. सिमिलरली अगर आप हमसे पूछा जाए ये व्हाट इज दिस वैल्यू, सो दिस इज सिंपल डेल आई स्क्वायर. यानी कि इस वाली इक्वेशन में आई जे को आई से रिप्लेस कर दो तो डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल आई का मतलब हो गया डेल एक्स स्क्वायर. सो दिस इज हियर. ठीक है, तो हम एक और क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. नाउ introduce phi is equal to summation I is equal to 1 to n and summation j is equal to 1 to n a I j del I j for every I and j, that is equal to 1, 2, 3 up to n. कहने का पर्पज यहाँ पे ये है क्योंकि हमारे को क्लासिफिकेशन सेकंड ऑर्डर की पीडी का करना है. तो ये फर्स्ट ऑर्डर के टर्म है, ये फर्स्ट ऑर्डर के टर्म कोई रोल प्ले नहीं करेंगे क्लासिफिकेशन के अंदर. केवल ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है यही ऑर्डर है जो हमारा पूरा रोल प्ले करने वाला है. तो हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए किया है यहाँ पर कि बार बार डेल टू यू अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स जे लिखेंगे, उसकी जगह हमने एक नया वेरिएबल मान लिया इसको स्मॉल डेल आई. तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, ओके. तो अब क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? सो वी फाइंड दिस डेल्टा, और डेल्टा इज नथिंग बट कोफिशिएंट a11 a12 अप टू a1n, देन a21 a22 अप टू a2n अप टू an1 an2 अप टू ann. If del is equal to 0, then equation will be parabolic. Then equation will be parabolic. इक्वेशन विल बी पैराबोलिक. यानी कि डिटरमिनेंट निकालेंगे हम कोफिशिएंट का. अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा इक्वेशन पैराबोलिक हो जाएगी. व्हाट अबाउट इलिप्टिक एंड
हाइपरबोलिक इक्वेशन। अगर ये 0 नहीं आता है तो फिर आगे चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? इफ phi, so what is phi? This is here phi. If phi is positive, if phi is positive for all real values of del xi and it is reduced to 0 only when all del xi's यानी कि all del 1, del 2, del 3 are 0। बेसिकली ये जो हमने फाई डिफाइन किया है, हम इसको कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद देखते हैं कि ये वैल्यू, चाहे कोई भी वैल्यू क्यों ना हो, रियल वैल्यू, हर रियल वैल्यू डेल आई की हर एक रियल वैल्यू के लिए ये अगर 0 की तरह रिड्यूस हो जाता है, कब? जबकि केवल डेल आई इज 0, देन इक्वेशन इज इलिप्टिक। दैट मीन्स ये डेल 0 होगा इफ एंड ओनली इफ ये सारे के सारे 0 हो जाए, अदरवाइज 0 नहीं हो सकता। अगर एक ऐसी कंडीशन मिल जाए कि जब सारे के सारे हम डेल आई जे को 0 ले रहे हैं, फाई 0 हो जाता है, तो उस केस में हम कहते हैं कि इक्वेशन हमारी इलिप्टिक है। और पैराबोलिक के केस में भी एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इन केस ऑफ पैराबोलिक इट सेज इफ फाई कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बोथ का मतलब है नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, देन इक्वेशन इज हाइपरबोलिक इक्वेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से। इक्वेशन है del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन c स्क्वायर del u ओवर del t। सॉल्यूशन हियर x, y, z, t are independent variable, ओके। ये फर्स्ट ऑर्डर का है तो इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, सो वन कैन बी रिटन एज del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर del 2u अपॉन del t इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म, we get, now question is what is standard form? Look at that, okay, this is standard form। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो सेकंड ऑर्डर के del 2u अपॉन del x स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट a11 है। इसी तरह से del 2u अपॉन del y स्क्वायर आया है, इसका कोफिशिएंट a22 है। del 2u अपॉन del z स्क्वायर आया है, इसका कोफिशिएंट a33 है। तो ये आपको एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के एक बार देख लीजिएगा, आपको याद होनी चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड द कोफिशिएंट। इसी तरह से अगर हम निकालें del 2u अपॉन del t स्क्वायर, दैट इज a44, तो यहां से हमें मिल जाएगा a11 इज इक्वल टू 1, a22 इज इक्वल टू भी 1, a33 इज इक्वल टू 1,
एंड A44 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें del 2u अपॉन del t स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं है, वो लीनियर टर्म आया है यहाँ पर, इस लीनियर टर्म का क्लासिफिकेशन में कोई रूल नहीं होता। नाउ फाइंड del, तो ये हो गया A11 0 0 0, A21 A22 A23 A24, नेक्स्ट A31 A32 A33 A34, और लास्ट वाले सारे जीरो होंगे, ऑल दीज आर जीरो। बेसिकली अगर आप इसको पूरा कंपेयर करेंगे देन यू विल फाइंड देयर विल बी मैट्रिक्स, क्योंकि 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स मिलेगी, तो दिस इज मैट्रिक्स देयर एंड दिस इज डिटरमिनेंट इज 0, क्योंकि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज वी नो इफ वन इंटायर रो और वन इंटायर कॉलम बिकम्स 0 द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। हियर इफ यू सी दिस फोर्थ रो और यू कैन से फोर्थ कॉलम, this is fourth column and this is fourth row, both are 0. So in this case, since delta is equal to 0, our equation is parabolic. Equation is parabolic. Another example. Example is uxx plus 2u xy plus u zz is equal to 2u xy plus 2yz. Okay, so 3 independent variables are here. Solution. Here there are 3 independent variables x comma y comma z. So how to get, so one can be, इसको मान लेते हैं question number 1. So 1 can be written as uxx, ये जो राइट हैंड साइड में नंबर्स जो भी क्वांटिटी दिए हैं, टर्म्स दिए हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड में इनको कन्वर्ट कर रहे हैं, -2u xy, दिस इज बेसिकली 2u yz है, प्लस this is, I think this is uyy, this is uyy, second term is uyy, okay, plus 2u yy minus 2u yz plus u zz is equal to 0. कंपेयरिंग इस क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं, comparing 2 with standard form. Standard form we get A11 is equal to 1. This quantity is A12 is equal to 2. A13 will be 0. Next, A21 is equal to 0. A22 is coefficient of uyy, this is 2, and A23 any coefficient of this yz is equal to -2. Then A31 is equal to 0, A32 is equal to 0, and A33 is equal to 1. Find delta, सारी वैल्यूज रखी, 1 -2 0 and 0 2 and -2 and 0 0 and 1. जब इसका डिटरमिनेंट हम कैलकुलेट करेंगे, दिस इज नॉट गोइंग टू बी 0. आप इसको कैलकुलेट करके देखना, दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली. तो जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो भी डिटरमिनेंट होता है दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, सो दैट कम्स आउट टू बी 2. तो आप चेक करके देखना, दैट इज नॉट गोइंग टू बी 0.
तो ये इक्वेशन पैराबोलिक तो नहीं है। अब ये चेक करते हैं कि इक्वेशन हमारी हाइपरबोलिक है या इलिप्टिक है। तो डेल को कैलकुलेट किया, दिस इज नॉट गोइंग टू 0, सो it is not पैराबोलिक। अब पैराबोलिक तो नहीं है, बाकी क्या है? तो काम करते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं डेल के टर्म्स में। जैसे हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया था, ये यहां पे लिखा था लेट इज फाई इज इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स आई, और फाई की वैल्यू कैलकुलेट की थी। हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पे हम एज्यूम करने वाले हैं let del 1 is equal to del over del x, del 2 is equal to del over del y, and del 3 is equal to del over del z। तो यहां से जब हम वेरिएबल निकालेंगे तो del 2 अपॉन del x स्क्वायर इज नथिंग बट del 1 का स्क्वायर, del 2 अपॉन डेल एक्स डेल वाई की बात करें तो दिस इज नथिंग बट डेल 1 एंड डेल 2 एंड सो ऑन। तो ये सारी की सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। इसी तरह से अगर हम बात की जाए डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट डेल 2 का स्क्वायर हो जाएगा एंड सो ऑन। सो इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 2 में सारी वैल्यू रखी तो हमारी जो इक्वेशन है दिस बिकम्स, यानी कि फाई हमने कैलकुलेट किया था, फाई बिकम्स डेल 1 स्क्वायर माइनस, अब देखिए इस वैल्यू को, 2 डेल 1 डेल 2, 2 डेल 1 डेल 2, ये हो गया 2 डेल 2 स्क्वायर प्लस का 2 डेल 2 स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म हो गया माइनस 2 डेल 2 डेल 3, और लास्ट टर्म हो गया प्लस का डेल 3 स्क्वायर। ओके, तो ये डेल 2 को हम दो पार्ट्स में लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेंगे डेल 2 स्क्वायर प्लस डेल 2 स्क्वायर। तो एक डेल 2 को तो हम ले लेंगे इस वाले टर्म के साथ, आगे वाले टर्म के साथ, और एक डेल 2 को ले लेंगे इस पीछे वाले टर्म के साथ। तो हमको यहां पे मिल जाएगा डेल 1 माइनस डेल 2 स्क्वायर, और जब हम लास्ट वाले टर्म के साथ लिखेंगे तो यहां से मिल जाएगा डेल 2 माइनस डेल 3 स्क्वायर, which is always greater than 0. Okay, this is always positive and this is always real for all values of del 1 and del 2. ठीक है, hence equation is elliptic. ठीक है, यानी डेल की कोई भी वैल्यू, डेल 1 डेल 2 डेल 3 की कोई भी वैल्यू हम ले लें, ये क्वांटिटी फाई की हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहेगी। सो दिस इक्वेशन इज इलिप्टिक इक्वेशन, और ये जीरो कब होगी? जब सारे के सारे डेल जीरो हो जाए तभी जीरो होगा, अदरवाइज ये जीरो नहीं हो सकता फाई। ये नहीं हो सकता कि डेल 2 जीरो हो जाए तो जीरो हो जाए। यहाँ डेल 1 डेल 2 डेल 3 ये सारे के सारे अगर जीरो होंगे उस केस के अंदर ही ये फाई की वैल्यू जीरो होगी, अदरवाइज ये फाई की वैल्यू जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो इलिप्टिक इक्वेशन क्या होती है? जब ये फाई की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, और ये जीरो तभी हो जब सारे की डेल 1 डेल 2 डेल 3 डेल n तक अगर हम जाते हैं सारे के सारे जीरो हो। और हाइपरबोलिक कब होती है? ये पॉजिटिव भी हो सके और नेगेटिव भी हो सकती है। तो इस केस में ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और ये जीरो तभी होगा फाई जबकि सारे के सारे डेल जीरो होंगे। तो ये इक्वेशन हमारी होगी इलिप्टिक। Okay, so in this lecture we discuss classification of second order partial differential equation with 2 independent variable and 3 independent variables. In next lecture we will discuss another very important topic, that is solution of given problem with method of separation of variable.